हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। टुडे वी आर मीटिंग विद द mock test series paper number 11, and before starting this paper number 11 I hope you have done the previous ones. And if you are new to the channel and you have not attempted any of the paper, please attempt papers in sequence 1 2 3 4. Please don't go randomly for on 8 or 9 or 10 or 6 or 5. Please don't do that. So just, and those who are already attempting this series with me, I hope you have covered your previous 10 papers. If you have not done, please do them fast as much as you can, because now we don't have time. अभी time नहीं है, हमको बहुत सारा पढ़ना है. Clear? So I think this will be the last mock test paper I will give you. If you want more, I'll make more papers. So ऐसा नहीं है कि last में सिर्फ बोल रही हूँ, but paper 11 papers करिए पहले आप. If you are done, you feel confident, तो you tell me in the comment section कि मैम और करना है, then we'll do more test papers. ठीक है. And ऐसा नहीं है कि इसके बाद I'll stop. Now I'll start discussing all the topics one by one. जो भी important topics हैं वो उनको मैं short videos में बना के आपके साथ छोटा videos में बना के discuss करूँ, so that you have the quick revision of every topic from the important topics from every chapter. You can tell me in the comment section also कि ये वाला टॉपिक करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है. जो आपको करना है वो आप मुझे बताइए. I'll prepare video on that. Clear? Now every video will be on your what you will ask. I'll make video on that. Clear? चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं. अपने स्टार्टिंग अपनी क्लास की कर लेते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं, with one motivational thought. Don't complain, just do it. कंप्लेन नहीं करनी कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे पास ये टाइम नहीं था, मेरे पास वो टाइम नहीं था. I have to do something means I have to do something. अब एक नॉर्मल सी बात अगर मैं लगाऊं आप लोगों को, अगर आप भूख लगती है तो आप क्या बहाना बनाते हैं कि घर में खाना नहीं था, या मेरे पास पैसे नहीं थे, या कुछ नहीं था. आपको भूख लगती है तो यू विल फाइंड समथिंग ना. आप कहीं से भी ढूंढेंगे, आप दोस्त से लेंगे, शेयर करेंगे, किसी के साथ भी लेंगे, घर में कुछ भी होगा, यू विल ईट बिकॉज यू आर हंग्री, यू आर हैविंग दैट हंगर. सो द सेम हंगर शुड बी फॉर योर स्टडीज ऑल्सो, फॉर योर गोल ऑल्सो, फॉर योर एजुकेशन ऑल्सो. सो कंप्लेन नहीं करनी, जस्ट डू इट. जो भी आपको मिलता है पढ़िए उसको. ठीक है. चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन ए. इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर 1 by c 1 by c 1 by c, the value of 1 by of c will be what? You know what do you mean by what? डायरेक्शन कोसाइंस का you know what is the relation? क्या होता है? That l square plus m square plus n square is equals to 1, and these are what? L, m, n are what? Your direction cosines. So L in place of L, M, and if you see all are what? Same. So what can we say? Thrice of L square we can say. अगर मैं सबको एक ही मान लूँ, suppose L equals to M equals to N, because all are same, which is equals to 1 by C. So what I need to do here, just आप यहाँ पे value put कर देंगे 1 by C square, that is equals to 1. So see this will be how much? 1 by C square will be equals to 3. So we can say C square will be equals to how much? It will be 1 by 3. So C square will be equals to 3, and what implies, so C will be equals to what? It will be plus minus root 3, and the option will be A will be the correct option. अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ना भी करती तो अगर आपको याद हो, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. तो ऐसा नहीं है बेटा कि हमेशा आपको आंसर ही पता होना चाहिए. आपको क्वेश्चन, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के आपकी मिसलेनियस में मिलेगा आपको. एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट होता है 2 बार एनसीईआरटी में, एक एक्सरसाइज में और एक मिसलेनियस में. सो जस्ट गो एंड चेक. आई थिंक मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 है कि 12 है, आई एम थोड़ा श्योर नहीं हूँ 11 है या 12 है. ये है मिसलेनियस. ठीक है, तो जरा चेक करिएगा. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑल द डायरेक्शन कोसाइंस वर इक्वल. ठीक है, क्लियर है बात. चलिए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन बाय द कर्व. दिस इज द कर्व. सो कर्व इज व्हाट? दिस, एंड द लाइंस आर x equals to 2 to 3. So just basically just do the same. Just directly you can do the integration. X equals to 2 to 3. It will be x plus 1 of dx. सीधा सीधा आप रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. What it will give me? It will be x square by 2 plus x. I hope now everybody is comfortable with the integration. This is normal integration. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? Just put your value of 3 first of all. It will be 9 by 2 plus 3, and then you will do minus of. सर रखिए 4 by 2 plus 2. How much it will be? Just simplify this. This and this will give me 5 by 2. माइनस करेंगे तो, और ये दोनों देंगे मुझे कितना मिला के? प्लस का 1 देंगे. We'll have 7 by 2, and option ढूंढ लीजिए which option is correct. Option number A is the correct answer for question number 2. I hope it is clear. So move on to question number 3 फटाफट से. जो देखो टफ नहीं है तो जल्दी से फटाफट से करेंगे, समझेंगे.
जो क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, डिफिकल्ट होगा, उसमें तो डेफिनेटली टाइम लगने वाला है, बट जो हमको आते हैं तो व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट टाइम इन दोस क्वेश्चंस? नाउ वी आर गिवन a dash and we are given b also, so we need to find value of a plus 2b dash, 2b whole complement we can say. If you open this will be what? A transpose, sorry, not complement, we are dealing with the not a set, here dealing with the matrices, तो यहाँ पे transpose बोलेंगे. A transpose plus twice of B transpose we have. If you see, we have directly A transpose को हमको दिया हुआ है. This is now plus twice of what B transpose will be. क्या ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है दैट आपका जो रो है वो कन्वर्ट कॉलम बन जाएगा, योर कॉलम विल कन्वर्ट टू रो. ठीक है, तो दिस विल गिव मी व्हाट? इट विल -1 0 1 to 2. Just convert your row to column or column to row, we can say. Now just you need to solve with this part now. -2 3 1 2, and if you multiply this inside, it will be -2 0, it will be 2 and it will be 4. Just अब आप आंसर निकाल लीजिए, कितना है आपके पास? It will be -4, it will be 1, then 5 and then 6. So which option is correct? A, B, C, D. Option B will be the correct answer for question number 3. I hope it is clear. Move on to question number 4 now फटाफट से. As I told you कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जो these questions we have done earlier also, तो इसमें ज्यादा समझने वाली चीज ही नहीं है. ठीक है? And if you like the video, please subscribe मेरे चैनल को, दोस्तों से शेयर करिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए थोड़ा, जैसे मैं आप लोगों को देती हूँ. चलिए अब बताना है कि दो वेक्टर्स हैं, दे आर कोलिनियर. How will you find vectors are collinear? Collinear का मतलब होता है a1 equals to b1 equals to a2 by b2 and then it will be a3 by b3. कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. और we can say a equals to b lambda और we can say b equals to a lambda. सब एक ही बात होती है, कोई दिक्कत नहीं. सब लिखने का सिर्फ तरीका अलग है, बाकी बातें सब एक ही है, चीजें सारी एक ही है. ठीक है, तो what can you write it? Like we can write 2 by a. This is equals to -3 divided by 6 and this is equals to plus 4 of minus of 8. This we can write. अब आपको ए का वैल्यू निकालना है, जस्ट इक्वेट कर दीजिए किसी से भी. सपोज मैं इसी से इक्वेट कर दूं आपको, तो हाउ मच यू विल गेट? कितना आएगा यहाँ से? -3a इक्वल्स टू व्हाट? इट विल बी 12 एंड a विल बी इक्वल्स टू व्हाट? -4. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ फटाफट से. फंक्शन आपको बताना है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. What will be answer for this question? If you find out, कैसे हम चेक करते हैं? We'll find first of all first derivative, then we check, उसमें हम डालेंगे वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि if it is greater than 0 it will be increasing, if it is less than 0 then it will be decreasing. So what is derivative? Sin x derivative will be cos x और cos x का हो जाता है बेटा जी what? Sin x. Clear है बात? Now we need to check 0 to 45. 0 to 45 में what I suggest? You pick up any of the point, any of the angle. 0 to 45 is suppose I pick pi by 30 degree. What it will give me? Now if I put at pi by 30 degree, it will give me what? It will be cos 30 minus sin 30. Because if you see, हमें ना इसी रेंज में चेक, इसी इंटरवल में चेक करना है, 0 से लेके pi by 4 के बीच में. So what is cos pi by 3? That is what? √3 minus 1 ये होता है cos 30. Yes, √3 by 2. And what is sin 30? That is 1 by 2. So if you see, this is √3 minus 1 divided by 2. And √3 means 1.372 minus 1 divided by 2. And this is nothing but what? Greater than value. Positive value we have. So this will be what kind of function? This will be strictly this will be an increasing function. Clear है बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्यों? अभी देखो, मैं आप बोलोगे ये तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, आपने बोला कि मैम ये 0 की नहीं हुआ. 0 भी हो सकता है ना बेटा. देखो 0 पे अगर आप देखो तो क्लोज्ड इंटरवल पे है. ठीक है, तो इट विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑलवेज. फाइन. चलिए अब फटाफट से बात कर लेते हैं किसकी? क्वेश्चन नंबर 6 की. फंक्शन आपको दिया, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? खुद ही देख के बता दो. 0 देखो, नॉट इक्वल टू 0 पे क्या दिया है? 1 दिया है. इक्वल टू 0 पे क्या दिया है? 2 दिया है. तो अगर आप LHL RHL की बात भी कर लेते हो, कॉन्टिन्यूटी की यही बात करते हो ना LHL RHL की, तो सबसे पहले तो हम जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है उसी पे चेक करते हैं. सो नाउ इफ यू चेक द पॉइंट ऑन x लिमिट 0 to minus and if you check limit x tends to 0 plus, what will you have on 0 plus? 0 plus all the values which are what? वैसे LHL RHL में जरूरत नहीं है चेक करने का, आप सीधे सीधे ये वाला डेफिनेशन लगाइए. लिमिट x tends to what? 0, f of x will be equals to f of 0.
ये वाला डेफिनेशन लगाए जो फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर उसका केस ही नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन का केस ही नहीं है, सीधे ये वाला डेफिनेशन लगाए, नो नीड टू गो फॉर द LHL RHL. What we'll do here, limit x tending to 0 means it is approaching towards 0 but is not equals to 0. तो क्या वैल्यू देगा ये देगा 1, लेकिन ये देगा 1 सॉरी. If you are talking about the f of 0 पे वो कितना वैल्यू दे रहा है? It is giving me the 2. So do we have 1 equal to 2? No, we don't have. So function is not continuous at what? X equals to 0. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन A will be the correct answer for question number 6. Now move on to question number 7. If fx equals to 2x and gx equals to x square by 2 plus 1, which of the following will be discontinuous? देखिए, if you talk about 2x, this is polynomial function, and x square by 2 plus 1, this is also polynomial. And what we have studied about the algebra of the continuous function, कि function क्या, like if you have two continuous functions, their plus will be what? Continuous. तो ये वाला तो ठीक है. Their difference will also be continuous. ये वाला भी ठीक है. Their product, but product बताइए, this will be continuous or not? Definitely this will also be continuous. लेकिन now what about this? Can we say this will be continuous? No, we cannot say. Why? Because the condition is, यहाँ पे condition लगती है कि suppose जब तक कि मेरा denominator will not be equals to 0, I cannot say that the function will be continuous. तो can be discontinuous उसने बोला है. Definitely continuous नहीं, discontinuous नहीं बोला उसने, can be. So option D will be the correct answer for question number 7. बात समझ में आ रही है? उसने अगर देखो, अगर वो ऐसे दे देता ना तुमको gx divided by fx, comma fx is not equals to 0, तब ये डेफिनेटली होता, बट उसने ये कंडीशन देना नहीं दिया है. So without this condition, this statement cannot be true. So option number D will be the correct answer for question number 7. Now move on to question number 8. डायरेक्शन कोसाइंस का फिर से क्वेश्चन है. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन इक्वल एंगल विद द डायरेक्शन एक्सिस. इक्वल एंगल का मतलब क्या होता है? Now what do you mean by equal angles? Equal angles, we have studied in the first question that L square plus M square equals plus N square equals to 1. And they are also nothing but equals to what? Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. क्लियर है बात? ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी, ये सेम क्वेश्चन है दोनों, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 और 8 सेम है बिल्कुल. So here you are given that beta is equals to gamma is equals to alpha. तीनों एंगल्स के आपस में सेम है. दिस इज ऑल्सो दैट क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला था कि एनसीईआरटी का 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन है, कोई गलत अलग चीज नहीं है. सो वी कैन राइट इट थ्राइस ऑफ cos square alpha बिकॉज सारा वैल्यू सेम है, दैट इज इक्वल्स टू 1. सो cos square alpha की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 1/3 और cos alpha you will have from here 1/√3. सो अल्फा का वैल्यू कितना आया? अल्फा का वैल्यू कितना आया? अच्छा, डायरेक्शन कोसाइंस पूछे है ना, तो डायरेक्शन कोसाइंस ही पूछे हैं, तो मींस cos alpha, cos beta, cos gamma. So likewise we can say this is equals to cos gamma and cos beta also. ठीक है, but one more thing, जब हमने स्क्वायर रूट लिया है तो we'll have to put down plus minus sign also. So which option is correct? We are having option number B will be the correct answer for question number 8. बात समझ में आते हैं? question number 1 and question number 8 both are same questions. चलिए बात करते हैं फटाफट से question number 9 की. If A and B are matrices, symmetric matrices rather, दोनों कैसे सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब होता है that transpose of A will be equals to A and transpose of B will be equals to the B only. He is asking कि जो ये दिया है this will be symmetric, skew symmetric, identity और null what. तो सबसे पहले देखो, सिमेट्रिक चेक करना है, स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है, सीधे सीधे सब बात है, जो भी दिया है ना उसका ट्रांसपोज लीजिए. सबसे पहले क्या करना है? ट्रांसपोज लीजिए. अगर सेम आया तो it will be symmetric. If you are getting the negative of this given matrix, you will have the symmetric, skew symmetric rather. ठीक है, चलिए. Now you know how to open it. कैसे होगा? We can write this A B whole transpose, A B transpose whole transpose minus B A transpose whole transpose. Now apply the property again. इसको कैसे लिखते हैं? जब प्रोडक्ट में होता है तो पीछे वाला आगे आएगा. B transpose डबल ट्रांसपोज का मतलब तो सेम ही रहता है. So B transpose this, B of, now पहले A आएगा, A of B transpose. तो अगर आप देखें तो क्या ये दोनों सेम है? नो, ये आगे वाला टर्म पीछे है, पीछे वाला टर्म आगे. सो इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, I can write this A B whole transpose minus B of A transpose. I can write like this, and this is nothing but you are having the what? This is minus of given, and if it is minus of given, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो बेटा? It will be a skew symmetric matrix. What type of matrix it will be? It will be a skew symmetric. And which option correct हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे? Skew symmetric. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर
9। क्लियर है बात? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ फटाफट से। चलिए, कौन करके बताएगा इस क्वेश्चन को? अभी ना मैं इस क्वेश्चन को करने वाली हूँ, सो पोज द वीडियो। मैं तो कर दूंगी, पोज द वीडियो एक बार हाँ अपने आप करके देखिए और मुझे बताइए किसका आंसर सही आ रहा है। आर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन? मुझे प्लीज 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 जो भी इस वीडियो को देखेगा, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग, मुझे इसका आंसर पॉज करके, खुद करके, सॉल्व करके, आ रहा है तो भी और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज एक बार जरूर बताइएगा कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। हुआ तो बड़ी अच्छी बात है, इट्स गुड इनफ। और अगर नहीं हुआ है तो भी मुझे बताइएगा कि मैं हमसे नहीं हो पाया था। नाउ आई वॉच द वीडियो, अब मुझे समझ में आया कि कैसे करना है। ठीक है, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग दिस, जब जब इस वीडियो पे आएंगे जो भी आएगा प्लीज फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन प्लीज। चलिए प्लीज पोज कर दीजिए, मेरा आंसर मत देखिएगा, मैं कर रही हूँ, अपना करिए एक बार से फिर, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं इस बात क्वेश्चन की। इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर x ऑफ 1 प्लस log x। इसमें क्या करना है आपने? देखिए इसका सीधा सा तरीका है कि x टू द पावर x को आपने t पुट कर देना है। अब उससे क्या होगा? मैं बोले इसको कैसे करेंगे कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे लिखोगे। अब बच्चे पता क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं x टू द पावर, पता नहीं क्या लिखते हैं, x माइनस 1। एक बात बताओ, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएशन करना नहीं सिखाया मैंने आपको? सिखाया है ना? कैसे सिखाया है? दोनों तरफ log लेना सिखाया है। तो जब इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या लोगे? दोनों तरफ log लोगे। नाउ दिस वी कैन राइट व्हाट? x को आगे ले जाओगे, x ऑफ log x इज इक्वल्स टू log ऑफ t। आप डिफरेंशिएट करिए बेटा जी। अब डिफरेंशिएट जब करोगे तो वी हैव टू प्रोडक्ट फंक्शंस इन प्रोडक्ट। x को ऐसे रखना है, log x का हो जाएगा 1 by x प्लस, नाउ कीप योर log x एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू log t का क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 by t और dt का हो जाएगा dt by dx बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दिस विल कैंसिल आउट, t को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, t ऑफ विल हैव 1 प्लस log x इसी dx भी ले आते हैं क्योंकि dx की रिक्वायरमेंट भी है और dt रख देते हैं इधर। और इफ यू सी t का मतलब क्या था? t वाज नथिंग बट x टू द पावर x ऑफ 1 प्लस log x dx इक्वल्स टू dt। तो अगर आप देखो जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो पूरा क्वेश्चन इसमें आ गया है। सो जस्ट पुट इट हियर, व्हाट इन प्लेस ऑफ द होल टर्म विल हैव जस्ट dt और आंसर dt का क्या होता है? सिर्फ t होता है, साथ में लगा देंगे इंटीग्रेशन और t को हमने क्या पुट किया था? x टू द पावर x किया था प्लस c लगा देंगे साथ में और ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जरा चेक करके बताइएगा कि आपका ऑप्शन करेक्ट आया कि नहीं आया। ठीक है, प्लीज इसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं फटाफट से और दोस्तों को बताइएगा कि यहाँ से करना है दैट यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स कि हाँ भाई यहाँ से पढ़ के हमको क्वेश्चंस हम जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो अब नाउ वी कैन लाइक सॉल्व द क्वेश्चंस। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फिर से कर्व दिया है आपको, एक लाइंस दी हुई है, अब इस बार y की लाइंस दी है। तो रिमेंबर कि आपके पास -1 to 1 है। रिमेंबर कि क्वेश्चन की वैल्यू जो पुट करते हुए x में रखना है y में रखना है, y और x में डिपेंड करता है आपकी लिमिट क्या है। सो इफ योर लिमिट्स आर इन x एक्सिस देन जस्ट यू पुट द फंक्शन ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x और अगर y का है तो y में रखेंगे। क्लियर है बात? और यहाँ पे भी dx और dy उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। फटाफट से सॉल्व करिए इसको। y ऑफ इट विल बी x स्क्वायर बाय y स्क्वायर बाय 2 प्लस इट विल बी 3y और इसकी वैल्यू कहां से कहां लेनी है आपने? दिस विल बी -1 to 1, दिस विल आल्सो बी -1 to 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से, क्या आंसर आने वाला है बोलिए जरा सा। दिस विल कैंसिल आउट, यहां से कितना देगा ये 1 माइनस ऑफ दिस एंड प्लस थ्राइस ऑफ 1 plus 1, दिस विल कैंसिल आउट, 3 into 2 दिस विल गिव मी 6 और कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ फटाफट से। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ, ये आप करेंगे क्योंकि कुछ नहीं, ये क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी है इस फंक्शन की। मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बहुत बार निकालना सिखाया है, तो मुझे बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होने वाला है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। सिर्फ ऑप्शंस देख के मत बोलिएगा कि ये वाला मिनिमम है तो ये वाला लगा दूं। ठीक है, मुझे पता है आंसर क्या होगा, तो सिर्फ मिनिमम जैसे बोल दें कि ये वाला या ये वाला, ऐसे सिर्फ ऑप्शन देख के मत लगाइएगा कि डी मिनिमम है तो लगा दिया, ए मिनिमम है तो लगा दिया, बी मिनिमम। प्लीज डोंट डू। मैं फिर बार बार बोलती हूँ, आपको अगर अपना प्रोसेस क्वेश्चन पेपर में नहीं दिखाना है प्लीज डोंट शो, लेकिन क्वेश्चन को ना साइड में जरूर सॉल्व करके देख लीजिए कि क्या जो ऑप्शन आप लगा रहे हैं इज दैट करेक्ट और नॉट। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं फटाफट से। डिटरमिनेंट तो आपसे पूछा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, थीटा है, एक्स है नॉट, किसकी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालने बैठेंगे तो एवरीबॉडी नोज हाउ टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट से। इसका डिटरमिनेंट आएगा एक्स ऑफ
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा ऑफ माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी से हो जाएगा। इट विल बी माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस ऑफ एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। माय थ्रोट इज नॉट वेल। आप लोगों को थोड़ी बीच बीच में मेरी आवाज से दिक्कत हो सकती है, बट कोई बात नहीं, दिक्कत बाद में चलेंगे, पहले पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। चलिए माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स एंड इफ यू कंबाइन दीज टू एक्स विल बी कॉमन एंड साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1, तो दिस विल कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा माइनस एक्स क्यूब एंड इफ यू सी दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज व्हाट, क्या ऑप्शन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ना, क्योंकि एक्स तो इसमें आ रहा है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब व्हिच ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तो नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ भी नहीं है, नॉट डिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड थीटा भी नहीं है, डिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा ओनली, क्योंकि इसमें एक्स तो आ रहा है, सिर्फ थीटा नहीं आ रहा, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, द नॉन जीरोस वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ होगा, आपने सिर्फ मैट्रिक्स दी है, उनको मतलब मल्टीप्लाई करिए, एड ऑन करिए। मैं पहले फर्स्ट वाला ले लेती हूँ, तो फर्स्ट वाला अगर मैं करूंगी यहाँ से तो कितना देगा, 2x स्क्वायर देगा, सब फर्स्ट वाला करती हूँ मैं, प्लस कितना देगा, प्लस 16 देगा, और ये वाला इसका क्या देगा, प्लस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस, देखो ये तो सेम सेम ही आ रहा है, तो इससे कुछ होगा नहीं। अब कौन सा वाला करें, अब ये वाला कर लेते हैं, x के साथ सेकंड वाले को कर लेते हैं, 2x प्लस इसके साथ लेके जाइए tan x, अब इसके साथ लेके जाइए इज इक्वल टू कितना 48, हाँ ये वाला हो जाएगा, दिस विल बी 12x इक्वल टू 48 और x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू विल बी 4, सो ऑप्शन नंबर विच इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज चैनल को और लाइक करिएगा वीडियो को, आप लाइक तो करते नहीं है। देखो जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है वैसे मुझे भी होती है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, द रेशियो इन विच एक्स जेड प्लेन डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स। आपके पास जो पॉइंट्स दिए हैं उनको कैसे क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। ये रेशियो निकालना आपने क्लास 10th में भी सीखा था कि नहीं सीखा था, वही जो आपने क्लास 10th में सीखा था बेटा वही है, कुछ अलग नहीं है। आपके पॉइंट्स हैं 4 -6 7 और यहाँ पे आपका पॉइंट यू आर गिवन -3 -2 8 एंड 3 एंड -8, क्लियर। प्लीज आस्किंग फॉर व्हाट, इट इज आस्किंग फॉर द रेशियो। अब बस ये फर्क है कि यहाँ पे बोला एक्स जेड प्लेन का मतलब है कि यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0, दिस यू नो, इफ यू आर डीलिंग विद एक्स जेड प्लेन मतलब उसमें y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और हमें k का वैल्यू निकालना है तो हम y पे ही फोकस कर लेते हैं। व्हाट इट विल गिव मी, इट विल बी -6 एंड इसके साथ इसको क्रॉस करके करते हैं मल्टीप्लाई, प्लस 3k डिवाइड बाई k प्लस 1। जो सेक्शन फॉर्मूला आपने उधर लगाया था ना क्लास 10th में, सेम फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने तो सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज वी आर डीलिंग विद द, मैंने सिर्फ y ही निकाला है, x और z निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ रेशियो चाहिए। सो दिस विल गिव मी व्हाट, -6 इक्वल टू 3k, माइनस का दिस विल कैंसिल आउट, और k का वैल्यू कितना आने वाला है, k का वैल्यू आने वाला है 2, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2:1 की 1:2, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट, यस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से cos इनवर्स। अब देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया आपके पास, cos इनवर्स ऑफ -√3/2 कितना होने वाला है, अगर इसकी बात करेंगे तो इसलिए पाई बाई कितने पे होता है, पाई/6 पे होता है 30 डिग्री पे, लेकिन अगर आप देखो कि नेगेटिव का है तो नेगेटिव तो 0 इसकी रेंज में लाई नहीं करता, तो व्हाट यू डू, आप माइनस कर देते हो मैक्सिमम वैल्यू से, इट विल बी पाई/6, so 5/6 will be the answer and option number B will be the correct answer for question number 16. I hope it is clear. Move on to question number 17 now. He is asking, you are given A, उसने लैम्डा की कुछ वैल्यूज दी हैं और मैक्सिमम वैल्यूज की पूछ रहा है। देखो अब देखिए लैम्डा ऑफ दिस, ये इसका मतलब ये है कि यू कैन टेक द लैम्डा कॉमन, और अगर इसके बाद अगर आप देखें, यू आर जस्ट लेफ्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर A। लैम्डा ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर A क्या होगा यहाँ से अगर आप निकालेंगे, दिस विल बी 4 + 4 + 1, so you'll have 3 of lambda। उसने मुझसे लैम्डा का वैल्यू पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू का लैम्डा का क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें लैम्डा की मुझे कितना वैल्यूज दी हैं, -4 -3 -2 -1 0
and 1. These values I am giving. So ये मॉडुलस था तो यहाँ पे मॉडुलस लगा लीजिए, ठीक है. This will be modulus. तो अगर आप यहाँ पे देखें, देखिए अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो I'll have 3 only. अगर मैं यहाँ पे 0 रखा I'll have 0 only. If I put minus, this will be 3. क्योंकि प्लस को तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा. This here you will have 6. यहाँ से you will have 9 और यहाँ से you will have what? 12. तो what maximum value you are getting? The maximum value you are getting is what? 12. So option number B will be the correct answer for question number 17. हर क्वेश्चन में बहुत लंबा छोड़ा होगा ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. क्लियर है बात? इस तरीके से आप निकालिए, आप बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता, ठीक है. सिर्फ चेक करना है और कुछ नहीं करना. चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 की. आपको दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए. दिस इज मॉडुलस और डिटरमिनेंट, सब एक बार वही सब चीजें याद आती रहती है. यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ ए. कैसे निकालेंगे? अब देखो मैंने पहले ही बोला है, प्रॉपर्टीज अगर नहीं आती है देन यू आर नॉट एबल टू डू दिस क्वेश्चन. ऐसे लिख सकते हैं इसको. दिस इज द प्रॉपर्टी, मैंने पहले बताई, आपके बहुत सारे पेपर्स में बताई हुई है. एंड दिस यू आर गिवन एज व्हाट? दिस यू आर गिवन एज 64. आपको वैल्यू किसका चाहिए? डिटरमिनेंट ए का चाहिए. व्हाट ऑर्डर यू आर गिविंग? ऑर्डर इज 3. ये रख देते हैं. 64 का हाउ कैन यू राइट? 8 स्क्वायर. सो दिस विल बी, ऐसे लिख सकते हैं. एंड इफ यू सी पावर्स आर सेम मींस वी कैन से बेसिस आर आल्सो सेम. ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होने वाला है? ए बी सी डी. बोलो. ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18. बात सही है कि गलत है? गलत है. कौन बोल रहा है कि गलत है? चलो गलत है तो आप मुझे सही बता दो, ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं. एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेक्शन ए. फंक्शन इज इंजेक्टिव. बिल्कुल इंजेक्टिव होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल इंजेक्टिव होगा. क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? और रीजन की बात करें कि इंजेक्टिव कब होता है? एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होता है, विच इंप्लाइज एफ एक्स इक्वल टू वाई. यही तो कंडीशन होती है इंजेक्टिविटी की. वन फंक्शन की यही तो कंडीशन होती है और इसी को चूज करके हम अपना ये प्रूव करते हैं. सो दिस इज ट्रू. दोनों कंडीशन ट्रू है और दोनों कंडीशन ट्रू भी है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. देखो जो मैंने फिर से बोला, बार बार क्वेश्चंस में अटकने की जरूरत नहीं है. बोर्ड्स में भी अगर आपके पास क्वेश्चन अटकता है, आप रुक जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, लीव दैट क्वेश्चन फॉर दैट टाइम. आगे बढ़िए. टाइम दोबारा से आए, उस पर फिर दोबारा से आए, तब आपके पास थोड़ा माइंड में ना चीजें फ्रेश हो जाएंगी. चलिए असेसमेंट अब पूछा, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा, दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स. बिल्कुल कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि एक ही कॉलम दिया हुआ है, तो ये कंडीशन तो ट्रू है. और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? व्हेन द ऑर्डर इज व्हाट? m क्रॉस 1. ये होता है कि एक कॉलम है और एक हमारे पास रोज, तो इट कैन बी एनी नंबर, एनी टाइप्स, एनी नंबर ऑफ रोज. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑल्सो. Again, both are true and this is correct explanation also. So option number A will be the correct answer for question number 20. And this is end of the what? This is end of your first section. I hope all the questions are clear. So फटाफट से बढ़ लेते हैं question number 21 की तरफ. Points are collinear, then find the value of lambda. Point collinear कब होते हैं? बता दीजिए फटाफट से. When their what? Area of the triangle is what? 0. और area of the triangle क्या होता है? निकालना सीखा हुआ है ना आप लोगों ने डिटरमिनेंट के मेथड से. क्योंकि यहाँ पे ना कुछ मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से निकालना है, तो जस्ट गो फॉर दैट. इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल गिव मी, ये 0 होने वाला है. डिटरमिनेंट निकालना आता है, निकालिए फटाफट से. दिस विल गिव मी ट्वाइस ऑफ -1 -4 प्लस 3 ऑफ लैम्डा प्लस 1 ऑफ 4 लैम्डा, बिकॉज ये हो जाएगा 4 लैम्डा -0 इक्वल टू 0. इफ यू सिंप्लीफाई दिस इट विल बी व्हाट? -10 प्लस 7 लैम्डा इक्वल्स टू 0. एंड लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10/7. दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 22. ए बी सी. देखो देखने में जितना बड़ा लग रहा है ना, करने में उतना ही छोटा है. कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है. उसने क्या बोला कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 1, बी इज 2 एंड सी इज 3. प्रोजेक्शन ऑफ B along A. Projection of B along A is equal to, projection of B along A का मतलब क्या है? Projection of B along A का मतलब है, B along A का मतलब ये है कि B along A, ठीक है, is equal to projection of C along A. C along A मतलब this condition is true. ठीक है. So if you see this will cancel out, आपके पास आ जाएगा B dot A same as nothing but equals to C dot A. क्लियर है बात? पहले सिर्फ इतना पढ़ते हैं. अब उसने बोला है यहां तक हो गया, ये यहां तक हो गया, ठीक है.
अब B and C are perpendicular to each other. B and C are perpendicular to each other का मतलब क्या है? B and C are perpendicular to each other. That means to say their dot product is supposed to be 0. चलिए ये बात खत्म हो गई यहाँ पे. चलिए three conditions we have now. Now he is asking find the value of this. If we are supposed to find out value of this, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसका स्क्वायर ले लेती हूँ. That will be what? Factor 3 of factor A minus 2 factor B plus 2 factor C. This. So I'm taking what? Square of this. तो क्या निकालेंगे? स्क्वायर अगर लेंगे तो if you open this will be thrice of vector A square plus, sorry not thrice, it will be 9 because स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा. 4 of B square plus 4 of C square minus 6 into 2. How much it will give me? 12 AB. Then it will be, ओपन करना आता है A plus B plus C का होल स्क्वायर. सेम नॉर्मल तरीके से करिए. माइनस 8 ऑफ BC एंड नेक्स्ट प्लस 12 ऑफ AC. दिस यू आर गिवन सपोज टू गॉड. अब कोई निकालना है, इसका वैल्यू को निकालना है. अगर आप यहां से देखें BA is equals to AC. BA equals to AC we have. So can we cancel these two values because दोनों क्या से आएंगी? यहां से आएंगी. दोनों क्या है? सेम है. और अगर आपने भी आपने देखा था कि B and C are what? They are perpendicular, so their dot product will also be 0. तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाना है? 0 हो जाना है. And we are just left with these three terms. तो इसमें वैल्यूज दी हुई है. Magnitude of A is what? 1. You are given 1 to multiply with 1 plus 4 of. Magnitude of B will be 2 and square will be 4 plus 4 into magnitude of C is 3, so it will be 9. So how much you are now? What you have now? 9 plus 16 plus 36. तो कितना ऑप्शन आपके पास आंसर आया? द ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी 61. बट उसने हमसे क्या पूछा? स्क्वायर नहीं पूछा. तो स्क्वायर नहीं पूछा तो सिर्फ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? पूरे का तो देखो स्क्वायर का तो आया 61, तो इसका सिर्फ कितना हो जाएगा? √61 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22. क्लियर बात? देखो देखने में पढ़ने में क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा होने वाला है, बट क्वेश्चन बड़ा नहीं है, क्वेश्चन इजी है. तो आप क्वेश्चन पे फोकस करिए, बाकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है. चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं फटाफट से. क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन करें? छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन. वेरिएबल सेपरेबल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों फंक्शन y में है. तो वेरिएबल सेपरेबल लगाइए. y स्क्वायर प्लस साइन y dy और इसको ले जाइए इधर. यू विल हैव dx. नाउ एवरीबॉडी नोज हाउ टू डू दिस सिंपल इंटीग्रेशन. y स्क्वायर इंटीग्रेशन विल बी y क्यूब डिवाइड बाय 3 एंड साइन x क्या होता है? माइनस कॉस y इज इक्वल टू x प्लस c. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. देखिए 2 लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ गया. 2 मार्क्स आराम से मिल जाने. फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z. अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू हैव x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू व्हाट? 9 और यू हैव x प्लस z इज इक्वल टू व्हाट? 5. x प्लस z अगर 9 है तो y का वैल्यू कितना हो जाना? 9 का वैल्यू, y का वैल्यू जाना 4. ठीक है. और दूसरे वाले से y प्लस z इज इक्वल टू व्हाट? y प्लस z यू हैव 7, तो x का वैल्यू कितना हो जाना? दैट विल बी इक्वल टू 2. और अगर आप देखें तीनों को मिला के 9 था, तो इन दोनों को मिला के 6 आ रहा है. तो y x का वैल्यू, सॉरी किसका बचा? x का वैल्यू ना, ये z का. तो z विल बी इक्वल टू हाउ मच? इट विल बी 3. तो z विल बी द 3, x विल बी 2, y विल बी 4 एंड z विल बी 3. कोई परेशानी वाली बात? बिल्कुल परेशानी वाली बात है ही नहीं और होनी भी नहीं चाहिए. क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं. यू आर गिवन वेक्टर a क्रॉस b एंड C क्रॉस D एंड A क्रॉस B. अब देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. कोई मतलब पता नहीं क्यों तुम लोगों को डर लगता है. यू आर गिवन दैट दिस इज इक्वल टू दिस और ये दोनों कंडीशंस आपको शो करना है कि दिस A माइनस B इज पैरेलल टू B माइनस C. यू नीड टू शो दैट A माइनस D इज पैरेलल टू B माइनस C. दिस यू नीड टू शो. और कोई भी पैरेलल कब होता है? व्हेन यू कैन से दे आर पैरेलल. यू कैन से दे आर पैरेलल when what? When their cross is what? When their cross is 0. When their cross is 0, they are supposed to be parallel. Cross अगर दिया है, now count, can you open this square, this cross? If I open this, it will be A cross B. First of all, A का करते हैं और minus of A cross C. अब D पे आइए, minus of D cross B and plus of D cross C. This you can do. Open तो करना आता है. अब देखिए, now you are given A cross B same as C cross D. तो ये तो A cross B हो गया और C cross D कहाँ है? ये वाला है.
तो एक बात बताइए, क्रॉस में आपने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, बट ए माइनस बी क्रॉस का प्रॉपर्टी होता है दैट ए क्रॉस बी इज सेम एज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, सो कैन आई राइट दिस वन माइनस ऑफ सी क्रॉस डी, कैन वी डू दिस? और अगर आप देखें अभी ये चीज किसका वैल्यू दिया है इक्वल्स टू, दिस इज यू आर गिवन दिस वन, और ये माइनस का है तो दिस विल कैंसिल आउट विद दिस वन। बात समझ में आई? हो गया सिंपल। नाउ माइनस ऑफ ए क्रॉस, ये दोनों कैंसिल हो जाने वाले हैं दोनों, क्योंकि हमने वो प्रूव ही करना है कि वो पैरेलल है। नाउ डी क्रॉस बी, डी क्रॉस बी आई कैन राइट बी क्रॉस डी बट विद द नेगेटिव साइन, ऑलरेडी आई हैव नेगेटिव सो दैट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, और बी क्रॉस डी का मतलब क्या है? बी क्रॉस डी का मतलब इसने क्या दिया? ए क्रॉस सी दिया है, तो फिर से मैं इसको क्या लिख देती हूँ? बी क्रॉस ए क्रॉस सी लिख देती हूँ, एंड दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस, वो सारे कैंसिल कट गए हमारे पास, एंड द आंसर विल बी 0। और हमने प्रूव कर दिया कि द क्रॉस इज व्हाट, क्या है? 0 है, और क्रॉस अगर 0 है तो दे आर सपोज टू बी पैरेलल, दे विल हैव टू बी पैरेलल। क्लियर कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से। उससे पहले आई नेवर लूज, ईदर आई विन और आई लर्न। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई आप देखो, अगर आप काम करना शुरू ही नहीं करेंगे, आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे, तो हार जीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, हाँ अगर आपने शुरू किया, मैं ये नहीं कहती कि 100% सक्सेस रेट विल बी देयर, हो सकता है कि इवन 1% हो सक्सेस रेट आपने, बट आपके मन में ये रहेगा कि हाँ यू हैव ट्राइड समथिंग। हारना जीतना दैट इज अ डिफरेंट इशू। तो सबसे पहली बात होती है घर से निकलना। घर से निकलोगे नहीं तो तूफान आंधी कुछ भी आए कोई पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, हाँ फिर बट जिसने किया है उसको ये रहेगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हो देन यू विल नो कि हाँ भाई पहले वाले में मैंने ये मिस्टेक की थी, तो नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, सो दैट इज लर्निंग। ठीक है, तो सिर्फ ये मत सोचो कि मैंने कोई काम अगर शुरू किया है तो वो मुझे उसमें 100% सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप ईमानदारी से, आप ऑनेस्टी से अपने काम को करते जाइए। वो एक टेक ले, 1 टेक 2 टेक, अगर आप मूवीज देखते हो आपको क्या लगता है जो इतनी बड़ी बड़ी 3 मूवीज हैं, या फिर आपको जो लगता है कि बहुत अच्छी मूवी थी, या कोई बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, या कोई अच्छी चल गई, सुपर हिट हो गई, ये हो गई वो हो गई, तो आपको क्या लगता है कि एक टेक में बन जाती है? उन लोगों को सिर्फ एक टेक में बना देते हैं, गाना खत्म हो जाता है? नो, दे ऑल्सो हैव मेनी मेनी रीटेक्स, उनको बहुत बार रीटेक्स लेने पड़ते हैं एक शॉट के। द सेम थिंग वी अप्लाई इन द रियल लाइफ ऑल्सो। एक बार में कुछ नहीं होता, जस्ट लाइफ का नाम ही लर्निंग है, चलते जाइए, सीखते जाइए जिंदगी भर। ठीक है, चलिए फटाफट से, ज्यादा ज्ञान की बातें करेंगे तो फिर ज्यादा टाइम लंबी हो जाएगी। ज्ञान की बातें फिर कभी करेंगे आराम से, आपका रिजल्ट जब अच्छा आ जाएगा तो अच्छे से ज्ञान की बातें करेंगे बैठ के। चलिए फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। cos इनवर्स माइनस पाई बाय 2, सॉरी माइनस 1/2, 1/2 कहाँ पे होता है? बता दो फटाफट से। पाई बाय 3 पे होता है? यस, पाई बाय 3 पे होता है, बट वी हैव नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन जब क्या होता है तो मैं क्या करती हूँ? रेंज मैक्सिमम रेंज वैल्यू में से माइनस कर देना है, प्लस अब tan ऑफ माइनस पाई बाय 3 कितने पे होता है? माइनस पाई बाय 3 पे होता है, और ये तो इसमें लाई भी करता है, रेंज में बिल्कुल करता है, तो इसको वैसे लिख देते हैं। cos इनवर्स रूट कितने पे होता है? दिस इज ऑल्सो पाई बाय 6 पे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट विल बी 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 एंड माइनस पाई बाय 6। अब एक बात बताओ, इससे सिंपल क्या लोगे? बच्चे की जान लोगे? पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। आज हमारे बच्चों का फेयरवेल था हमारे स्कूल में, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, पता है। आई वॉज हैप्पी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू बी सैड, बट कोई बात नहीं, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। अगेन दे विल ऑल्सो मूव इन देयर लाइफ्स। आज मुझे याद करना है, कल भूल जाएंगे। फिर कुछ नया मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे, नया माहौल होगा, नए टीचर्स होंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली शायद भूल जाएंगे। बट पता नहीं क्यों मुझे दैट वाज वेरी लाइक दे वर वेरी क्लोज टू माय हार्ट। चलिए, एंड स्पेशली हो सकता है कि शायद मेरा भी ना, चलिए क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, चलो छोड़ो, बात की बातें करेंगे। ठीक है, मैं लाइक आई डोंट वांट टू बी मोर सेंटी नाउ। चलिए, यू आर नीड टू शो हियर दैट फंक्शन इज सपोज टू बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव और इंजेक्टिव में मैंने आपको प्रूव करना सीखा। बाइजेक्टिव के लिए क्या होता है? बाइजेक्टिव के लिए यू नीड टू प्रूव दैट फंक्शन इज 1 1 ऑल्सो एंड फंक्शन इज ऑन टू ऑल्सो। ये करते हैं हम। तो सबसे पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। 1 1 कैसे चेक करना है आपने? दैट f of x1 will be equals to f of x2 and this is supposed to be f of 3x1 plus 1 divided by x1 minus 2 and this is equals to, और आपने क्या करना होता है इसमें? आपने करना होता है कि आपने जो x1 और x2 लिया है दैट इज सपोज टू बी
इक्वल, अगर आपको इक्वल आ जाते हैं फंक्शन 1 1 होगा, नहीं आते हैं तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। सिंप्लीफाई करिए, इट विल बी 3 of x1 x2 माइनस थ्रू कितना 6 of x1 प्लस x2 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इधर लिख लेती हूँ मैं 3 of x1 x2 माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ 6 x2 माइनस 2। अगर आप इसको देखें दिस विल टू कैंसिल आउट, इसको इधर लेके जाइए माइनस 5 x1 दिस इज इक्वल टू माइनस 5 x2 एंड यू विल हैव x1 इक्वल टू x2। दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब फंक्शन क्या है 1 1 है। देखो बोला भी था उसने फंक्शन शो दैट इट इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर मैं पहले बोलती हूँ, देखो क्वेश्चन के ना वर्डिंग्स पे जाइए, प्रूव दैट इट इज बाइजेक्टिव, शो दैट इट इज बाइजेक्टिव मींस दे आर ऑलरेडी, वो सिर्फ पूछा है आपको बताना है करना कैसे है। हाँ अगर पूछा होता चेक whether it is bijective or not, तब there is a point it can be it can not be, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए लैंग्वेज पे जाइए कि होगा क्या आंसर इसका। अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लिया ना, आधा क्वेश्चन तो आपने वहीं पे सीख लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या, अभी सॉरी 27 की बात नहीं, ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू में क्या करते हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट योर fx इक्वल्स टू y। तो वही हमने जो बोला कि जो x एग्जिस्ट करता है वही x हमने ढूंढना होता है। तो क्या करेंगे fx इक्वल्स टू y पुट कर देते हैं। fx इक्वल्स टू y पुट किया तो देन यू विल हैव 3 of x plus 1 डिवाइड बाय x minus 2 इक्वल्स टू y। एंड आफ्टर दैट इफ यू सिंप्लीफाई दिस, अभी हमने क्या निकाला था x के इक्वल करना होता है, तो y के इक्वल है ना, हमें x के इक्वल करना है। सो दिस विल गिव मी 3x plus 1 will be equals to xy minus 2y. Now what you will have from here? You will have from here x of 3 minus y will be equals to minus 2y minus 1 और यहाँ से आपके पास x का वैल्यू आ जाना है 2y plus 1 डिवाइड बाई y minus 3, ये आ जाना है। तो हमने वो x ढूंढ लिया है जो हमने कहा था। तो अब हम क्या करेंगे, सो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट x। अब x कौन सा, x होगा कुछ इस तरीके के फॉर्म का। x का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा x ही होगा, दैट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट। अब हमने जो बोला था ना कि fx इक्वल्स टू y आएगा, वही हमें प्रूव करना है। fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, fx इक्वल्स टू f ऑफ 2y प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 3 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 3 ऑफ 2y प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2y plus 1 divided by y minus 3 minus 2. This will be, and if you simplify this, you will have the answer as y. Simplify करिए इसको, आराम से आपके पास आंसर आपके पास क्या आने वाला है, it will be y and 2. If you are getting y, the function is supposed to be on 2, and we have already solved that it was 1 1 also, so it is 1 1 also, it is on 2 also, so we can directly say function will be bijective also. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे करेंगे इसको बताइए फटाफट से, कैसे निकालोगे आप इसका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लॉग ऑफ dy by dx। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बोलोगे मैडम इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए पता है इतना, आप कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इतना तो कर देंगे, इसको कर देंगे, फिर इसको लॉग को ले जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा e to the power 3x plus 4y। अब बोलेंगे मैडम इसको कैसे सॉल्व करें, ये तो x में भी y में भी है। क्यों घबराते हो भाई, पता नहीं क्यों तुम लोग इतना जल्दी घबराते हो। प्लस में है ना तो ब्रेक कर लो ना, इसीलिए तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बनाए गए हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। हो गया ना ब्रेक, अब तो कर सकते हो सेपरेट। नाउ वी कैन राइट e to the power minus 4y, क्योंकि जब इसको इधर लेके आओगे तो माइनस का देगा नीचे, तो ऊपर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ e to the power 3x dx। ये लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका आंसर क्या आने वाला है, यहाँ से इसका आंसर होगा e to the power minus 4y डिवाइड बाई माइनस 4 और यहाँ से दे देगा e to the power 3x डिवाइड बाई 3 एंड प्लस c। ठीक है, ये तो होगा जनरल, बट उसने पूछा पर्टिकुलर। कब पूछा है, y इक्वल्स टू 0 है, व्हेन x इक्वल्स टू 0 मींस वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ c। तो रख दीजिए फटाफट से, y को जब 0 रखोगे ऊपर वाला 1 बनेगा, तो माइनस 1 बाई 4 इक्वल्स टू 1 बाई 3 प्लस c। सो यू विल हैव minus 1 by 4 minus 1 by 3, this is equals to minus 7 by 12। ये हो गया आपका किसका वैल्यू, दिस विल बी अ वैल्यू ऑफ c। क्लियर है, और ये आने के बाद इसको फिर क्या कर देना, c वापस पुट कर दीजिए,
e to the power minus 4y divided by minus 4 is equals to e to the power 3x divided by 3 and you will have minus 7 by 12. आपको इतना छोड़ दीजिए, आपको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अभी आपको समझ में आना होगा कि धीरे धीरे क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं, बहुत सिंपल होते जा रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन। मैं बता दूं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना, बहुत सिंपल सा। एफ डैश निकालो, पर हाँ इसमें बस एक बात, जब एफ डैश निकालोगे ना तो एक अलग सा फॉर्म आएगा, उसको सिंप्लीफाई करना है आपको, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ही आपको चेक करेगी। और मैं सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ, इसको इस तरीके का फॉर्म आता है, उसमें एक्स स्क्वायर ऑफ 1/x अपॉन 2 + x, क्योंकि इसमें जब करोगे तो नीचे 1/x आएगा, इसमें 2 + x है। आप एलसीएम लोगे और सिंप्लीफाई करना और फिर आप इसमें बताओगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इंक्रीजिंग होगा। क्यों? क्योंकि हम बात करते हैं x ग्रेटर देन -1 की। -1 का मतलब है आप बात करेंगे 0 से ऊपर के वैल्यूज की, और अगर आप 0 से ऊपर के वैल्यूज की बात करेंगे तो अगर 0 भी पुट करते हो तो भी फंक्शन क्या देगा, 0 देने वाला है, कोई बात नहीं। अब 1 की बात करेंगे तो 1 सब 1 1 देने वाला है, 0 1। अब जैसे जैसे 1 पॉजिटिव में बढ़ते जाएंगे दैट विल बी 0 ग्रेटर देन, तो फंक्शन क्या होगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और वही उसने बोला था ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है थ्रू आउट। तो इतना डायरेक्टली नहीं करना है, आपने इसको पहले डेरिवेटिव निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, हाँ फिर ये आएगा, उसके बाद मैंने क्या प्रोसीजर करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। कैसा है, अच्छा लग रहा है? अच्छा है तो क्वेश्चन है, क्या क्या पुट करना है बता दो फटाफट से। 10x पुट करना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेकंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं। तो i का वैल्यू कितना है यहाँ से, इट विल बी इंटीग्रल ऑफ, देखो ये तो पूरा क्या बना देगा, दिस विल बिकम dt, ऊपर क्या हुआ t स्क्वायर हुआ और नीचे क्या हुआ 1 - t टू द पावर 6 हुआ। अब कैसे सॉल्व करें मैम, ये तो सोचने वाली बात है, अब कैसे करें? अरे कुछ नहीं सोचने वाली बात है बेटा जी, इसको ऐसे लिखिए, ये लो लिख लिया। नाउ पुट t क्यूब इक्वल्स टू u, व्हाट्स द बिग डील इन दैट, 3t स्क्वायर dt is equals to du and t स्क्वायर dt will become equals to du by divided by 3। ये लो क्या परेशानी वाला है, तो ये t स्क्वायर dt के मतलब कितना हो गया 1/3, तो 1/3 ऑफ इंटीग्रल du डिवाइड बाई 1 माइनस u स्क्वायर। ये लो अब तो स्पेशल इंटीग्रेशन आ गया, अब भी क्या परेशानी है। सो इट विल बी 1/3 ऑफ कौन सा वाला, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा 1/2a वाला, 1/2a log ऑफ ऊपर वाला प्लस में नीचे वाला माइनस में प्लस। t का वैल्यू पुट कर दीजिए और t का करने के बाद उसको 10 का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू मैं नहीं पुट करी, आप करिए फटाफट से, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैं वीडियो जितना लंबी बनाऊंगी फिर आप लोग देखोगे नहीं, बोलोगे इतना लंबी वीडियो बनाई मैडम ने, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व यूजिंग दिस। अब इसमें बोलोगे क्या करना है, ये करना है, देखो सर्कल है पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग द रेडियस a, तो ये हो गया आपका a, 0। और आपने उसने पूछा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब उसने पूरा पूछा है, उसने कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो मैं क्या निकालूंगी, मैं फर्स्ट वाले का निकालूंगी और मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से, क्योंकि सारे एक जैसे हैं। अब इसकी अगर बात करें यहाँ से कितना 0 से लेके a की बात कर लेते, बिकॉज दिस इज ओरिजिन, कहां से कहां, इंटीग्रल 0 टू a, 0 से यहाँ से ले लो, 0 से a लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, एक ही बात है, ठीक है, सब ले लो ये वाला। और किस में बात कर रहे हैं, x में डील कर रही हूं मैं, आप x में करिए y में रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सारों सबसे आंसर सेम आने वाला है। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। बस स्पेशल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा लो, आंसर आ जाएगा। क्या होता है x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, किसका है ये बता दो फटाफट से, a स्क्वायर माइनस x किसका होता है, साइन इनवर्स का होता है। तुम लोग तो पढ़ोगे नहीं ना, मैं ही पढ़ रही हूँ तुम्हारी बात, तुम्हारे हिस्से का। तुमको लगता है कि मैडम पेपर देके आ जाएंगे और हमारा पेपर हो जाएगा खत्म, ठीक है। आप क्या करना, लिमिट पुट करनी है, अगर पहले वाले लिमिट पुट करोगे 0 देगा, इधर वाले पे a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो π/2 हो जाएगा, ठीक है। काट दो इसको, कितना बचेगा y, अब बोलोगे 0 तो पुट कर लो 0, इसको 0 करो, ये भी 0, इसको 0 करो, ये भी 0, यहाँ से 0 आने वाला, इसलिए नहीं पुट किया था, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस, पाई a स्क्वायर विल बी द आंसर, ठीक है। और अगर आप देखो ये सर्कल ही तो है बेटा, अगर नॉर्मल अगर आप चेक भी करना है आपने आंसर, अगर आपने आंसर चेक भी करना है, एक बात बताओ, ये सर्कल है कि नहीं है, है ना सर्कल, और इसकी रेडियस कितनी है, सर्कल रेडियस कितनी है, a है ना।
अगर रेडियस ए है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर की जगह ए रख दो, पाई ए स्क्वायर हो गया। देखो ये चेक करने का तरीका है, ठीक है, तो हंसना नहीं है, ये चेक करने का तरीका है। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन कितने में आ जाए, ये क्वेश्चन उसमें आ जाए 1 मार्क में, 1 मार्क में आ जाएगा तो पाई पूरा निकालने बैठोगे, कोई जरूरत नहीं है, ये भी चेक कर लिया करो, थोड़ा सा दिमाग ना चला लिया, घंटे खोलो दिमाग की, तुम बचाओ इसको। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये आपको मैं क्वेश्चन शॉर्ट्स में दूंगी। एक्चुअली मैंने किया है, मेरे इसका वीडियो है मेरे पास, मैं तुमको वीडियो दूंगी शॉर्ट्स में, तब तक ना तुम लोग ट्राई करो। बहुत इजी सा, थोड़ा इजी तो नहीं कह सकती, हाँ, बट दिस क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में जरूर करवाया है शायद। क्वेश्चन जो मेरा स्कूल का क्लास है उसमें मैंने एक करवाया है, जिसको आता है गुड इनफ, वरना मैं दूंगी। आप जिन लोगों को जो मेरी क्लास स्टूडेंट नहीं है, आप उसको प्लीज ट्राई जरूर करिएगा, मैं दूंगी जरूर इसका सोल्यूशन, डेफिनेटली आई विल गिव यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, मैंने किया हुआ है, मैं आपको दूंगी, ठीक है। चलिए अब पर आप इसको ट्राई करिए, मुझे बताइएगा कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें आप tan इनवर्स x लिया हुआ है, और tan इनवर्स को अगर आप t ले लेते हो तो आपके पास ये नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ये तो पता है, बट इसका क्या करोगे, ऊपर वाले का क्या करोगे, आई वॉन्ट टू नो दिस फ्रॉम यू, ठीक है। बता देती हूँ कि tan x को आपने क्या पुट करना, हिंट बता दिए, tan x को t पुट करिए, और उसके बाद आपने क्या लीजिए, डेरिवेटिव लीजिए, कितना हो जाएगा 1/1 + x² dx = dt, ठीक है। मुझे जानना है कि उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब ये करवाने का क्वेश्चन है नहीं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बोला था आएगा पेपर में, बिल्कुल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पॉइंट में निकाल देती हूँ, क्या होता है a2 - a1, और अगर आप देखो डायरेक्शन रेशियोज अलग अलग है तो वेक्टर्स भी है, उसके बाद डॉट ऑफ b क्रॉस b1 क्रॉस b2, ये होता है, एंड डिवाइड बाय यू विल हैव देयर मैग्नीट्यूड आल्सो। मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि सब लोग नहीं बताते हैं, और नहीं बता रहे हो इसका मतलब आपने किया नहीं है, ठीक है। तो मुझे ये मत बोलना कि हमने किया है, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। देखो a1 a2 में निकाल देती हूँ, a1 कितना होगा, यहाँ पे a1 के कोऑर्डिनेट्स होंगे 8i - 9j एंड प्लस 10k, ये हमारा a1 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट से, a2 विल बी 15i + 29j, एंड अगर इसको अरेंज करोगे तो इट विल बी z ऑफ, ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, ये नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यू विल हैव 5k + 5k, ठीक है। और b1 वेक्टर b1 क्या हो जाएगा, वेक्टर b1 विल बी 3i - 16j + 7k, और b1 2b2 विल बी 3i + 8j - 5k। क्लियर बात, मैंने सारी कुछ चीजें निकाल दी, आप वैल्यूज पुट करिए जरा, एंड गेट योर आंसर इन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर, चलिए मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34 नाउ। फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आने की उसकी चांसेस है, और आता भी है। क्या क्वेश्चन उसने बोला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको निकालना कैसे, देखिए आपने कोई लाइन दी है, दिस इज द लाइन, यू हैव x + 1/2, ये आपको इसने एक लाइन दे दी, व्हाट यू नीड टू डू दिस, जस्ट फॉलो द स्टेप्स। अब वो बोल रहा है कि देयर इज अ पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट P whose coordinates you are given 1, 2 and -3. He is asking find the foot of the perpendicular from the line on this. मतलब ये आपने ये बताना है, ये वाला पॉइंट बताना है आपने, this is the point. Suppose this have the general coordinates x, y, z. Okay, let's suppose this is Q having the coordinates x, y, z. Now this are given as the line, so can we find the value of x in generalization? X will be of the form 2 lambda -1, y will be -2 lambda +3, and z will be equals to -lambda. तो ये हो गया हमारे क्या, what general points. Now he is asking foot of the perpendicular, this is perpendicular line, ठीक है। अब कैसे निकाल सकते हैं, अब अगर आप देखें कि lines, if lines are perpendicular, he is saying, suppose this is A and this is B, he is saying AB is perpendicular to P, what, PQ. इसका मतलब हुआ, you can say that A1A2 + B1B2 + C1C2 will be equals to 0, और उसको क्या है, they are their direction ratios. डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, देखो AB के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, दिस विल बी 2 -2 एंड दिस विल बी -1, ठीक है। इनका मुझे क्या लेना है, प्लस, किसके साथ लेना है, मैंने लेना है अपने दूसरे वाले डायरेक्शन रेशियोज के साथ, किसके,
पी क्यू के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, देखो ये पी है और ये है क्यू के कोऑर्डिनेट्स, तो क्या क्या हो जाएंगे यहाँ से, इफ यू सी दिस विल बी 2 लैम्डा माइनस ऑफ 2, कैसे निकालते हैं, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, and then this will be minus 2 lambda plus 1, and यहाँ से कितना आएगा, minus lambda plus 3 equals to 0. ठीक है, now you simplify, this will be 4 lambda minus 4 plus 4 lambda minus 2 plus lambda minus 3 will be equals to 0. ठीक है, 8 9 lambda minus 6 minus this minus 9 will be equals to 0. तो lambda का वैल्यू कितना आया, lambda का वैल्यू will be equals to 1. ठीक है, so what will be the points of coordinates of q now? तो वापस पुट कर दीजिए, q will become what, 1 1 and minus 1. I hope it is clear. आगे हमारे पास, सॉरी, so we have got value this coordinates of q. ठीक है, तो आपने ना स्टेप वाइज करना है. सबसे पहले आपने क्या करना है, जनरल पॉइंट्स निकालेंगे. दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, we'll apply the condition for perpendicularity that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0 to find out your lambda. वहां से आपके पास क्या आ जाएगा, you will have the q now. ये तो उसने हो गया फर्स्ट पार्ट का. उसने बोला also find the image of p. ये है आपके पास 1 2 minus 1 1 2 minus 3. यहां से आपके पास suppose this was p. यहां से you have this q as 1 1 minus 1. अब इसका जो इमेज रहा होगा वो इसके नीचे ही रहा होगा, ये होता है इमेज. तो p का इमेज रहा होगा, लेट्स सपोज दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा, और जो इमेज होगा दैट विल बी नथिंग बट दिस इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ p एंड p डैश. लेट्स सपोज दिस इज p डैश. तो p और p डैश के बीच में जो q है आपके पास, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट्स इमेज, व्हाट, मिड पॉइंट. सो कैन वी से दैट अल्फा प्लस 1 डिवाइड बाय 2, कौन कौन सा, अल्फा और ये फर्स्ट वाला अल्फा एंड 1 डिवाइड बाय 2 विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू द दिस मिड पॉइंट. Similarly, beta plus 2 divided by 2 will be nothing but equals to this one, and gamma minus 3 divided by 2 will be nothing but equals to this minus 1. And what alpha beta gamma you will get from here? चेक कर लीजिए, आपके पास ये आने वाला है 1, ये 0 और ये आने वाला है आपके पास 1. और मुझे बता दीजिए क्या आपके भी यही आ रहे हैं. ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि मेरी कैलकुलेशन गलत हो, आप मुझे बताइए कि कैलकुलेशन ठीक है या गलत है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33. यस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33. और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. दिस इज योर व्हाट, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया है. तो पहले चेक करना है वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है. देखिए, अगर आप इसमें देखें, यू कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल्स. मेरे हिसाब से वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते. लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है. अगर आप इसके देखो, दिस इज क्वेश्चन ऑफ होमोजीनियस. क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर 3 है, इन दोनों का मिला के भी 3 आने वाला है, इसका भी 3 है और इन दोनों का मिला के भी 3 आने वाला है. सो दिस इज होमोजीनियस. और होमोजीनियस का तरीका आपको पता है. सॉल्व करिए और आंसर बताइए. होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व एंड टेल मी योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. कुछ क्वेश्चंस मैं इसीलिए देती हूँ ताकि आप लोग ना करो प्रैक्टिस. अब हर क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगी, क्योंकि तो वो देती भी वही हो जो तुम लोगों से हो जाएंगे. नहीं होंगे तो मुझे बताओ, मैं हूं यहाँ पे तुम लोगों के लिए. ठीक है, चलिए एलपीपी का क्वेश्चन है. फिर से एलपीपी का क्वेश्चन आप करेंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर. अब तो आई होप कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जिसको एलपीपी का क्वेश्चन नहीं आता होगा. बिकॉज ये मान के चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर पेपर में 3 में 4 में या 5 में ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है. या तो 3 मार्क में आएगा, या 5 मार्क्स में आएगा, या 4 मतलब केस स्टडी में आएगा. ठीक है, तो मान के चलो कि आएगा ही आएगा. अगर आपने नहीं किया देन इट विल बी, यू विल बी इन ट्रबल. वरना ये नंबर ना फ्री के मिलने वाले हैं. चलिए अब लास्ट बात कर लेते हैं अपने सेक्शन नंबर सी की. वी आर डीलिंग विद द केस स्टडीज नाउ. कंसीडर द गिवन इक्वेशन p dy by dx plus py equals to q. उसने बोला है कि अब जब दी हुई है अपन को, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात की है, तो समझाया चीजें. हमें बात करनी है अपने इस क्वेश्चन की. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, वी कैन राइट दिस dy by dx equals to प्लस में इधर ही रख लेते हैं, प्लस y cos x डिवाइड बाई 1 प्लस sin x, क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है ना. चलिए मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया. कैसे लिखा कि जो हमारा ये इसका कोएफिशिएंट था, दिस डिवाइड थ्रू आउट द क्वेश्चन, थ्रू आउट दिस डिनोमिनेटर. तो यहां से करोगे तो 1 आएगा, इधर ही आ जाएगा और इधर इसको राइट में ले जाते हैं. अब पहली वाली बात पूछे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q.
तो फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, पी का वैल्यू क्या होगा, बोलो फटाफट से बोल दो, y को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू हो जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। और दूसरा q भी पूछा है, q विल बी माइनस x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। सो q विल बी माइनस x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आस्किंग फॉर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसने दिया भी है और ना आपको पता भी है, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx। You just put your values of p here. P is what? Cos x divided by 1 plus sin x. The next thing is what? यहाँ पे आप क्या करेंगे, नीचे वाले को आप what you need to do, just put as this is equals to t. e to the power integral of, इसको जब t किया you will have cos x dx. So dt divided by t आपके पास आने वाला है और ये बन जाएगा e to the power log t। और e to the power log का मतलब होता है 1 और सिर्फ आंसर आने वाला है इधर t, और t आपने किसको माना था, t माना था आपने 1 प्लस साइन एक्स को। तो आंसर क्या हो जाना है, 1 प्लस साइन एक्स विल बी द आंसर फॉर द इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। दिस विल बी योर इंटीग्रल फैक्टर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। जनरल इक्वेशन पूछिए है, क्या करते हैं जनरल में, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर कितना आया, 1 प्लस साइन एक्स आया, तो उसको रख दीजिए, क्या परेशानी है। और क्या पूछा है, राइट में क्या होता है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, क्यों क्या था हमारे पास इधर से माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इट वॉज ऑलरेडी वी हैव 1 प्लस साइन एक्स, वी हैव मल्टीप्लाइड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, माइनस करिए, विल हैव y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल विल बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस सब खत्म होने वाला है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो दिस विल बी द जनरल आंसर। अब उसने पूछा है कि 1 प्लस साइन एक्स क्या दिया है आपको, ये देखो ये आंसर आ रहा है ना, आप मैच भी कर सकते हैं, उसने आंसर दिया भी है। अब ही इज आस्किंग फॉर द y 0 इक्वल्स टू 0 और y का वैल्यू और y पाई बाई 2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप ट्राई करिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल क्वेश्चन जनरल मैंने निकाल दिया, अब आपको सिर्फ पर्टिकुलर निकालना है, क्लियर है बात। तो बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ फटाफट से। आपको प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज दी हैं जो आपको 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 7 तक, एंड गिवन द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दोस रैंडम वेरिएबल्स आल्सो। ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ p दिस इन टर्म्स ऑफ k, पहले k की टर्म्स में ही बताना है। देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें, 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3 मींस आस्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 1 का क्या है हमारे पास, 1 का वी हैव k, 2 का वी हैव 2k एंड 3 का वी हैव 2k। सो आंसर विल बी 5k विल बी द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकंड की बात कर लेते हैं फटाफट से, 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 4। नाउ वी हैव 0 प्लस 1 अगेन इन टर्म्स ऑफ k, 2 प्लस 3 प्लस 4। देखो 1 प्लस 2 का तो निकाला था अभी, 2 3 का, 0 का क्या है 0 ये उसका, तो 4 का कितना एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, 3k ऐड हो जाएगा। सो 5k प्लस दिस आंसर विल बी 8k। और थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड वैल्यू ऑफ k का मतलब उसने बोला है कि हमको k का वैल्यू निकालने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, जितनी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ x है सब आपको क्या कर दो, सिग्मा लोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ऐड करिए जरा फटाफट से, कितना आएगा, अगर आप इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा टोटल, 8k वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, 8 एंड 9k, सो 10k स्क्वायर प्लस 9k और इक्वल्स टू -1 है, तो इधर ले जाइए इसको 0, एंड द फैक्टर्स अगर आप करेंगे यू विल हैव द फैक्टर्स एज k प्लस 1 एंड द फैक्टर्स विल बी 10k माइनस 1। इफ यू फाइंड आउट k का वैल्यू आएगा -1 विच इज नॉट पॉसिबल, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी 0 जाने सॉरी माइनस हो जाने वाली है, तो k का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1/10 आ गया। और अब उसने पूछा इसके बाद इसके हिसाब से आपने क्या करना है, वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6। x लेस देन 6 का मतलब है आपके पास 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और आपने अभी 0 तक तो 4 तक तो निकाला है, 8k और 5 का कितना है, 8k प्लस k स्क्वायर, so this will be 8/10 plus 1/100। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 81 डिवाइड बाई 100 will be the answer, ठीक है। सो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। देखिए अब इसको अगर और देखिए, यहाँ पे उसने वैल्यू दे रखी, k का वैल्यू आपका क्या आ रहा है 1/10 ना, वही तो है आपका भी, तो आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। ग्रेटर देन 6 में कौन कौन सा आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा, ठीक है। देखो अगर आप देखो आपने 5 तक निकाला था, तो 5 तक निकालने के लिए क्या करें, इसको निकालने के लिए क्या करें, 1 में से कर दो 5 तक का, दिस डिवाइड बाय दिस, ये लोग हो गए। सो 19 डिवाइड बाय 100 विल बी द आंसर फॉर दिस वन। आप 6 और 7 का ऐड कर लीजिए या 1 में से 0 से 5 तक का माइनस कर दीजिए, एक ही बात है,
कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और क्या पूछा है, और पूछा है 0 लेस देन x लेस देन 5। x लेस देन 5 का मतलब 1 2 3 सॉरी ऐड 1 2 3 एंड 4, इनका चाहिए उसका आंसर, जोड़ दीजिए, ऐड कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, कोई परेशानी वाली बात अब है ही नहीं, खत्म होने वाला। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी बिलीव करती है कि पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दोज हु आर डायरेक्शन प्रोन एक्सीडेंट प्रोन सॉरी एंड दोज हु आर नॉट। अब इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला है, कैसे देखिए, उसने बोला कि हमारे पास जो पीपल हैं उन लोगों ने कुछ इंश्योरेंस है, उन लोगों के पास उन्होंने 2 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया, विच आर एक्सीडेंट प्रोन, कौन कौन से, 1 आर कुछ है जो एक्सीडेंट प्रोन है, एंड दोज हु आर नॉट एक्सीडेंट प्रोन, ठीक है। Company statistics show that an accident-prone person will have an accident at some time within a fixed year, 1 year period with probability 0.6. ये वाला होने वाला आपके पास 0.6 accident prone वाला, ठीक है। Where as this probability is 0.2 for a person who is not accident prone. ये वाला हो जाना है 0.2, मतलब ये हमारा E2 इवेंट है और ये हमारा E1 इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है और ये वाला हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। अब आगे वो मुझे क्या बोल रहा है, कंपनी नोज दैट 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन, 20% इज एक्सीडेंट प्रोन। इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा कि जो हमारे पास कितना है, 20% पॉपुलेशन एक्सीडेंट प्रोन है, नॉन एक्सीडेंट प्रोन कितना हुआ, इट विल बी 80%, टोटल तो ये टोटल 100% होता है, 20% एक्सीडेंट प्रोन है तो बचा कितना 80%। चलिए अब उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इन न्यू पॉलिसी होल्डर विल हैव एन एक्सीडेंट विद इन ए ईयर ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी। मतलब सिवा की बात है, ये आपसे टोटल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एक साल में अगर किसी पॉलिसी होल्डर में नया पॉलिसी खरीदा तो उसको कितना एक्सीडेंट होने की चांसेस है कि नहीं है, कितना होता, कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, एड ऑन कर देते हैं, कर दीजिए फटाफट से, 0.6 डिवाइड बाई 10 इसको हटा देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई दिस परसेंटेज था, प्लस अगेन 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 80 डिवाइड बाई 100, सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आएगा 120 प्लस 160 नीचे आ जाएगा 1000 और इसको आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 100 और 18 डिवाइड बाई 100 सॉरी 28 डिवाइड बाई 100 और 28 डिवाइड बाई 100 का मतलब होता है 7/25। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, suppose that a new policy holder has an accident within a year of purchasing a policy. What is the probability that he or she is accident prone? तो सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो इसमें फेवरेबल क्या हो जाना है वाला है, फेवरेबल हो जाने वाला एक्सीडेंट, नीचे हो जाने वाला टोटल। एक्सीडेंट वाला कौन सा केस था, ये फर्स्ट वाला था ना, इज 120 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई टोटल कितना आता है 7/25। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 25 से काटिए इसको 4 पे, इसको काटिए 3 पे, you will have 3/7. So 3/7 will be the answer for this question. I hope it is clear. So this was last question. This is end of the video. As I told you in the starting also कि हम ये पेपर है मेरी तरफ से आपके पास लास्ट है, आप बोलेंगे तो मैं और करा दूंगी। Now we'll start revising all the concepts also one by one. फटाफट से कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, ठीक है। हालांकि मैंने बोला था कि इसमें ऐसे देखो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मैंने कवर कर ही दिया है पेपर मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू, बट स्टिल इफ यू वांट मोर प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस, मुझे बताइए तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी कि आपको कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है। आप मुझे रिक्वायरमेंट नहीं दोगे तो मैं आपको सप्लाई भी नहीं कर पाऊंगी इस चीजों की, ठीक है। डिमांड इज इफेक्ट्स योर सप्लाई एंड एवरीथिंग। चलिए, सो दिस वाज एंड ऑफ द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करते जाइए, फटाफट से बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जब भी होता है ना मिलता रहे, ठीक है। चलिए, टिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून एंड टिल देन यू प्रैक्टिस एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।